Today is the class of 11th class. We are going to study the next topic of narration, that is called interrogative sentences into indirect narration. In the previous classes we studied assertive sentences into indirect narration, and now today we are going to learning interrogative sentences into indirect narration. It has some rules like assertive sentences, but it is the rules of interrogative sentences is different from assertive sentences. As we know that first change is to change said. Either it is the sentence of assertive sentences, either it is the sentence of interrogative sentences, either it is the sentence of interrogative, imperative, optative or exclamative sentences. You know very well that five kinds of sentences. There are five kinds of sentences, and five kinds of sentences have different rules for the change of direct narration into indirect narration. And now today is interrogative sentences. So the first rule is to change said. Said or said to changed into asked or inquired of. Second is to change comma and inverted commas, comma and double inverted commas. Whenever interrogative sentences are given to change, two types of conditions comes before us. First condition comes that the sentences start from auxiliary verbs, that is known as yes no type interrogative sentences. It means to say, if interrogative sentences come into reported speech, if used, if or whether is used at the place of comma and double inverted commas, into if or whether for yes no type interrogative sentences. Means if the sentences start from auxiliary verbs, primary auxiliary verb or modal auxiliary verbs. Means you can say is, are, am, was, were, do, does, did, has, have, had, may, might, can, could, shall, should, will, would, etc., etc. Then comma and double inverted commas are replaced, and if is used or whether is used. Generally if is used. And the second condition is that WH type interrogative sentence comes into reported speech. If WH type interrogative sentence or who type interrogative sentences come into reported speech, we never use the connectivity word if. The interrogative words what, when, why, how much, how many, how far, how long, who, whose, whom, which is used. Means no special word is used at the place of comma and double inverted commas. Only WH word is used at the place of, in the place of comma and double inverted commas. And the fourth rule is that interrogative sentences is changed into assertive sentences. This is the problem. This is the main problem. There are many boys, there are most students who do not know how to change assertive sentences into interrogative sentences and interrogative sentences into assertive sentences. First of all, we must know, we must try to understand how to change interrogative sentences into assertive sentences. Then, suppose that a sentence come into reported speech, do you know me? How will you change? Means this, the assertive sentence of this interrogative sentence will be you know me.
means this will be changed into indirect narration. Have you seen the place? This is interrogative sentence, and the assertive sentence of this sentence will be you have seen the place. May you help me? This will be changed into you may help me. Suppose that WH type come, what are you doing now? अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको एसर्टिव में कैसे बदल लेंगे? तो क्या हो जाएगा, व्हाट जैसे है वैसे ही रह जाएगा, यानी कि व्हाट, और इसका एसर्टिव क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग नाउ, फुल स्टॉप। मतलब इसको हम चेंज करेंगे, ये हम लिखेंगे नहीं वहां पे, लेकिन अपने दिमाग में हम मान लेंगे कि इसका एसर्टिव ये है और हमको इसको ऐसे चेंज करना है। जैसे डज सी कुक फूड का एसर्टिव क्या होगा, सी कुक्स फूड, यानी कि इसको चेंज किया जाएगा, डू या डज हट जाएगा, डिड हट जाएगा। जैसे डिड इंडिया विन द मैच स्टरडे, तो इसका एसर्टिव क्या होगा, इंडिया वॉन द मैच स्टरडे, इसको चेंज करेंगे और हम डिड को हटा देंगे, एक्सक्यूज मी। ओके, अर्थात मेरे कहने का मतलब विद्यार्थियों ये रहा कि सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलना जानना चाहिए, तभी हम उसको ठीक से समझ पाएंगे, अन्यथा हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। यही मैंने बताने का प्रयास किया। जैसे विल यू गो टू स्कूल टुडे, इसका एसर्टिव क्या होगा, यू विल गो टू स्कूल टुडे को हम चेंज करेंगे। व्हाट विल यू गिव मी ऑन माई बर्थडे, तो इसका एसर्टिव क्या होगा, व्हाट यू विल गिव मी ऑन माई बर्थडे, इसको चेंज करेंगे। ओके, मैंने आपको 4-5 नियम बताया, जिसमें मैंने बताया सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। दूसरा मैंने बताया कि कामा और इन्वर्टेड कामा के 2 कंडीशन होते हैं, यदि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होता है वाक्य, तो हम कामा इन्वर्टेड कामा के लिए इफ या वेदर लिखेंगे, और यदि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम इफ या वेदर नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो WH वर्ड आया है वही कंजंक्शन हो जाएगा, और बाकी जैसे हम चेंज करते आए हैं वही चेंज कर देंगे। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो उसके बाद सेंटेंस बताओ उसको हम इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में बदल देंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स। चलिए हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं, इसको देखिए आप लोग, एग्जांपल्स। ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल, सी सेड टू हर, आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, आई सेड टू हिम, डिड यू सी योर फ्रेंड्स yesterday, these 3 sentences। मैंने क्या कहा, अब एक बात तो ये भी है, कैसे आप पहचानेंगे, तो सेंटेंस पहचानने का तरीका तो आपको आना ही चाहिए। कर्ता आवे और वाक्य का फुल स्टॉप आवे, मतलब एसर्टिव सेंटेंस, और यदि पहले ही या तो इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए या कोई सहायक क्रिया पहले आ जाए और अंत में क्वेश्चन मार्क आवे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो इसको हम सेड एट टू आया है तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, कामा के लिए क्या लिखेंगे? इफ क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इफ अब हम किसको बदलेंगे? इसका एसर्टिव क्या हो जाएगा? यू विल को हम बदलेंगे। तो इस यू को बदलेंगे मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा? आई। अब कहेंगे अरे आई कैसे हो गया? तो कैसे हो गया? अरे ये मी ऑब्जेक्ट है और ये यू मी के लिए आया है, या जो मी है इसी के लिए यू आया, या ये कहिएगी यू के लिए मी आया है। तो यह सब्जेक्टिव रूप है, कर्ता वाला रूप है, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव रूप है, कर्म वाला रूप है। तो इसका सब्जेक्टिव हम रूप लिखेंगे तो आई हो गया। अब ये फ्यूचर में है तो हम बताए हैं कि शैल या विल दोनों को हम वुड में बदलते हैं। तो क्या लिखेंगे? आई वुड हेल्प मी को बदलेंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, हिम, फुल स्टॉप। ऐसे शी आस्क्ड हर, कामा एंड कामा के लिए इफ। अब क्या हो गया? आर यू गोइंग, यानी कि यू आर गोइंग, तो यू को बदलेंगे किसके अनुसार? हर के अनुसार, तो सी हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सी वाज गोइंग, शी वाज गोइंग टू स्कूल, देन शी वाज गोइंग टू स्कूल देन। आई आस्क्ड हिम इफ, ये किस में है? पास्ट में है, तो ये डिड हट जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू, डज या डिड से हो तो डू, डज, डिड ऑटोमेटिक हट जाता है। कब नहीं हटता है? जब वह निगेटिव में हो, तब डू, डज, डिड नहीं हटता है। उसको मैं उदाहरण दूंगा अभी। तो क्या हो जाएगा? इफ यू को बदलेंगे हिम के अनुसार तो ही, और यह पास्ट में है तो सा हो जाएगा। ये तो सा का क्या हो जाएगा? हैड सीन। परफेक्ट में बदलेंगे ना, हैड सीन योर फ्रेंड। योर को बदलेंगे किसके अनुसार? हिम के अनुसार, तो हिज फ्रेंड स्टरडे को द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। इसको मैं मिटाता हूं और कुछ और उदाहरण लिखता हूं। देखिए विद्यार्थियों, मैं फिर से कहूं आप लोगों से, नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ विद्यालय के लिए नहीं बल्कि आगे के कंपटीशन की तैयारी के लिए भी। इसलिए इसको अभी समझ लेंगे तो आपके आने वाले भविष्य में जो एक प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। जैसे दे सेड, व्हाट will you do in future? The boy said, can you help my friend? The man said, when have you reached there? क्या हो जाएगा? They asked व्हाट, यानी इन्वर्ट कामा के लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा। व्हाट, ये विल चला जाएगा यहाँ पे, असर्टिव हो जाएगा। यू को बदल देंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर या तो हिम मान लेंगे या मी मान लेंगे। तो यदि हिम मानते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही वुड डू इन फ्यूचर, फुल स्टॉप। द बॉय आस्क्ड इफ, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट फिर से नहीं है तो हम मान लेंगे आई, मी यहां पर है तो आई। आप चाहे तो यहां ब्रैकेट में मी या हिम या हर लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। आई क्या हो जाएगा? कुड, कैन क्या कुड हेल्प, माई को बदले किसके अनुसार? द बॉय के अनुसार, हिज फ्रेंड, फुल स्टॉप। द मैन सेड, तो द मैन
आस्क्ड, व्हेन, हैव यू है, यहां यू हैव हो जाएगा, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, ही हैड रिच्ड देयर। ऐसे मैं कुछ और उदाहरण लिखता हूं। I said to him, how many cups of tea have you taken? His friend said, who will give you money? She said, who is your best friend? तीन वाक्यों में बदलता हूं तो आई आस्क्ड हिम। अब ध्यान दीजिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, ये पूरा, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी, ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए ये पूरा का पूरा कंजंक्शन होगा। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी हैव यू टेकन, तो ये क्या हो जाएगा, हैव यहां चला जाएगा, यू को बदलने किसके अनुसार, हिम के अनुसार, he had taken, फुल स्टॉप। यानी कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, असर्टिव का मतलब ही होता है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आप लगाएंगे। फिर his friend asked who will give you money। ध्यान दीजिएगा कभी कभी यहां का जो सहायक क्रिया होता है वो आगे चला जाता है, लेकिन यहां नहीं जाएगा। who would गिव, हु वुड गिव, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मान लेंगे हिम या हर, हिम मनी, फुल स्टॉप। अब सी आस्क्ड हु, अभी भी यही चला जाएगा उधर, यानी ये इज आगे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, योर यानी हिज बेस्ट, a best friend, who his best friend was, ये फुल स्टॉप। अब इसके लिए परेशान मत, अगर वाज के बाद तो कुछ है ही नहीं है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही बनता है। यानी कि उसने पूछा कौन उसका सबसे अच्छा मित्र था, ऐसे बनाएंगे। कुछ और उदाहरण देखिए। राजेश said, what is your business? He said, what is your name? She said, why are you sad? तो क्या हो जाएगा, राजेश आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, ये व्हाट तो कंजंक्शन हो जाएगा, लेकिन ये इज उधर चला जाएगा, ये भी इज उधर चला जाएगा, और ये आर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हिज नेम वाज, ऐसे फुल स्टॉप। ही आस्क्ड व्हाट योर को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मान लेते कि मी है, तो आई माई हो जाएगा,
माई, सॉरी यहां नेम नहीं है, व्हाट हिज बिजनेस है, सॉरी BUSINESS, बिजनेस वाज, तो व्हाट माई नेम वाज, ऐसे ही उसी तरह से ये सी आस्क्ड वाई, अब यू को बदलेंगे किसके अनुसार, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी लगा दीजिए, सी वाज सैड, देखिए अब ये दूसरा हो गया, यानी कि वाज के बाद यहां पर आया है तो इसको हम लिखेंगे, तो ऐसे बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक नियम और लिख लीजिए, लिख लीजिए, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आता है, ऐसी स्थिति में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के अंत में, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के शुरू होने से पहले पोलाइटली, हम्बली या रिस्पेक्टफुल्ली लिखते हैं। शेष नियम उपरोक्त, जैसे द स्टूडेंट सेड मे आई कम इन सर, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट आस्क्ड, अब देखिए यहीं पर यह रिपोर्टिंग स्पीच समाप्त हो गया, यही रिपोर्टिंग स्पीच के अंत में और रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में, यानी पहले क्या लिखेंगे, या तो पोलाइटली या हम्बली या रिस्पेक्टफुल्ली, रिस्पेक्टफुल्ली, ज्यादा लोग रिस्पेक्टफुल्ली लिखते हैं, आप पोलाइटली लिखिए या हम्बली लिखिए, पोलाइटली। अब ये क्या लगेगा इन्होंने का मतलब इफ, क्योंकि यह सहायत्री आया है, इफ ये में यहां चला जाएगा तो ये आई को बदलेंगे इंसिडेंट के अनुसार, तो ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, इफ ही माइट कम इन, यानी कि सर या मैडम हट जाएगा। अब आप शायद आपके दिमाग में एक बात बन सकती है कि सर और मैडम कहाँ गया, तो आप ये कह सकते हैं कि सर या मैडम रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइटनेस दिखाने के लिए बोला जाता है, तो अब पोलाइटली या हम्बली या रिस्पेक्टफुल्ली आ गया है तो हमने सर या मैडम हटा दिया है, वो उसमें प्रवेश कर गया, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये कुछ नियम आपको हमने बताया, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए। विदाउट एक्सरसाइज यू कांट अंडरस्टैंड नरेशन। नरेशन इज द वर्क ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। If you are knowing many rules, every rules, and if you do not have any kind of exercise, you can't understand narration very well. So you must take exercise. I will try my best to send you some copies of exercise by clicking a photo in your group. Thank you very much.